Bismillahirrahmanirrahim. Am I audible? Yes, sir. Okay. So today's lecture is the after initial completion of your complete dentures. What we have done, we have made the impressions. Then after that, what we did, we make the wax rims and then we do the jaw relationships. उसमें सारे किस्म के jaw relation थे, orientation था, vertical, horizontal. Then afterward, what we did, we select the teeth and then we arrange the teeth. After arranging the teeth, then we try the wax denture in patient's mouth, and that appointment is basically called try-in appointment or trial appointment, whatever you want to say. In different books, different name is used. So what is the objective of this appointment? Basically, at this point in time, you can rectify, you can judge any error in your prosthesis, might be in your denture base, might be in your teeth there. Might be color is not okay, or the size is not okay, or the position is not okay. You can improve any deficiency in your prosthesis at this point in time. But once you will go for curing, with for your final uh, step, it's very difficult to improve certain little things even. यानी अगर एक दांत भी आगे पीछे हो गया आपका, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. पहले पूरे दांत को काटो, निकालो, फिर देन वैक्स अप करो, देन अगेन उसकी फ्लास्किंग वगैरह करके सारा प्रोसेस रिपीट करो. So it's better idea that you should go for trial, and there's no prosthesis till today which is, we advise you that you will go without trial. इवन अगर आपका फिक्स पार्शियल डेंचर है, उसका भी ट्रायल होता है, उसका भी जॉ रिलेशन चेक होता है, उसके भी कॉन्टेक्ट एरियाज चेक होते हैं, उसका भी फिटिंग एरिया चेक होता है. सो सिमिलरली इन योर कंप्लीट डेंचर्स, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें दो हिस्सों में आप ट्रायल को डिवाइड कर सकते हैं, द इंटीरियर ट्रायल एंड द पोस्टीरियर ट्रायल. इंटीरियर ट्रायल में कंसिडरेशंस आर मोस्टली एस्थेटिक्स रिलेटेड. And in posterior trial, you just check out certain things like your vertical dimension, your centric relationship, and these two things are major, or the position of your teeth as far as your neutral zone is concerned. So what is trial appointment? If you see the definition, see, I have started 10 minutes late lectures, abhi bhi log admit ho rahe hain. So half of my concentration is towards the. So if you see the glossary of prosthodontics terms, you will find this definition: preliminary arrangement of denture teeth that has been prepared for placement in patient's mouth to evaluate aesthetics and maxillomandibular relation. क्योंकि ये definition है, I have elaborated this definition. Okay, prior to your final curing of your prosthesis, you will insert the dentures in patient's mouth in different steps. Like, where first you set anterior 6 teeth, and then you will insert it in patient's mouth and see certain things there. Probably your static considerations. Then you arrange the posterior teeth, and then you try to look for your maxillomandibular relations. It means two areas, two different considerations. So that's why anterior trial is always be important as for your posterior trial. So हमेशा 6 दांत लगाएं और ट्रायल करें. पूरा का पूरा अरेंजमेंट करने के बाद अगर आप ट्रायल करेंगे, अगर कोई एरर आ गया उसमें, तो सारे के सारे दांत आपको निकालने पड़ेंगे. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. This is very important. Only do the anterior 6 teeth trial. First, you have to confirm all of your considerations there. If you are satisfied, your patient is satisfied, you will show your denture to your patient there. उसके सामने आईने के सामने खड़ा कर दें. 25 centimeter उसका gap हो between this mirror and the patient, and then you ask your patient to see the general things there, whether you are satisfied, color ठीक है, position ठीक है. अगर if your patient is giving you the agreement, so you will go for the finalization of your prosthesis there. So क्या करते हैं इसमें, significance क्या है of your trial appointment? It would give some psychological benefit, yes.
Why? Because you are involving your patient, and sometimes you ask your patient to bring some observer along with you, some family member. If she is a lady, you may ask, bring your husband or son or daughter, what the close relationship, or any friend might be. So you have to train that particular person. वो भी मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जर्वर को भी ट्रेन करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि ऑब्जर्वर आपने खड़ा कर दिया और उसने चीजें बताना शुरू कर दी. So observer, then your patient, both are involved in your treatment there, so that would give some psychological benefit to your patient there. Then you are giving some opportunity to your patient that to see different the dimensions of your arrangement and your selection there. ज्यादातर पेशेंट फोकस जो करेगा इस वक्त इस स्टेप के ऊपर, वो देखेगा दांत कैसे लग रहे हैं. उसमें दो ही एरियाज हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज योर selection of your teeth. If your size and color of your teeth is okay, your patient will give you the confirmation. If he or she is having some problem, if it is logical, you will entertain. If it is not logical, for example, some of the patient demands very wide teeth, but the age of your patient is 60 plus, so you never entertain that kind of the demands of your patients, which are from your point of view, which are not absolutely right for that particular patient. But if your patient force you to go for that particular thing, you will always take the sign or your consent form that this is going to be happen later on, and I'm not going to be responsible for that particular thing there. So after that, you evaluate different things like retention, stability, and support of your denture. Then you verify your vertical dimension, then you verify the centric relationship, whatever the steps you have gone through. Then evaluate the denture base contours. Your denture base might be too thick or might be overextended, and you try to evaluate that particular thing. Then you verify the arrangement and aesthetics of your denture that we have already discussed. Then if you need at this point in time, you can improve the jaw relationship if there is some problem in your interocclusal relationship there. If you find that the retention of your prosthesis is not good and your denture is short in your posterior area, you have to improve that posterior palatal seal area. So we have different considerations to improve the posterior palatal seal area. अगर आप देखें तो what you used to do, if you are short in your posterior area, you have to build that area. You have to extend your denture base, and you can improve at this point in time. Why? Because you are going for curing. You can add on the acrylic to your old acrylic. Very easy. Like what you used to do, you used to add some green stick or some red cake compo. If the deficiency is too much, you add the red cake compo, and then over that you add the green stick at a specific area. By marking the vibrating line, you make the judgment how much you are short there. If you are short 2 to 3 millimeters, this can be compensated by simply adding the green stick. But if you are short more than 2-3 millimeters, you add on first the red cake compo, make a base for your green stick, and then later on add the green stick there. Why? Because of the gravity, your red cake compo may go down. That may not, compress the tissues optimally you need at this area. So you want 2 millimeter of your compression. Why? Because your posterior palatal seal area has got the ideal characteristics for your compressions there, and your posterior palatal seal, until and unless you will not compress that area, it is not going to be feasible for your denture to keep the peripheral seal there. So then इंटरोक्लूजल चेक रिकॉर्ड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो मैंने शायद पीछे वही प्रोसेस होता है जो हम पीछे करके आए हैं. उसमें यू में improve the vertical dimension, adding or subtracting the wax from your the occlusal rims. और अगर आपने दांत लगा दिए तो सारे दांत निकालें एक रिम से. अगर आपके पास एक रिम डिफॉल्टेड है तो एक रिम से निकालें. अगर दोनों ही खराब हैं तो फिर दोनों को इंप्रूव करें. अगेन रिपीट द प्रोसीजर, गो फॉर योर आर्टिकुलेशन. सो वन बाय वन वी विल सी दैट क्या करना है.
Prior to your trial, you have to educate your patient first. उसमें क्या करना है कि patient को certain informations you have to convey. कि पहली दफा जब आप डेंचर लगाते हैं, you always find that कि you have a bulky appearance there. You may find that you have a more facial bulkiness there. So you would always show the mirror after few minutes. At least 5 minutes you have to keep the dentures in patient's mouth, keeping in consideration that कि अगर बहुत hot weather है, your teeth are in wax, so time by time in between उसको cold water में निकाल के patient के मुंह से cold water में dip करते रहें. Because we are not using a good wax in our dental OPDs. अच्छी wax होती है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती. So the first feeling is always a feeling of temporary fullness there. Why? Because your muscles for a longer period of time, they are not supported by your teeth and your acrylic there. They were supported by the bone. They have a different tension in your muscles fibers there. So that picture has to take some time to get adopted. तो कुछ देर के बाद जब पेशेंट डेंचर पहनना शुरू करता है तो ये टेम्परेरी फीलिंग ऑफ फुलनेस जो होती है वो ठीक हो जाती है. देन एक्सेसिव सैलिवेशन, ये आपने पहले बताना है कि ज्यादा सलाइवा आएगा जिसकी वजह से आपकी रिटेंशन कॉम्प्रोमाइज होगी और स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी. तो इनिशियली यू मे फाइंड दैट द डेंचर्स आर नॉट nicely controlled by your patient because of your salivation. Since you have a foreign body in your patient's mouth, so your जो आपके salivary glands हैं, because of your taste alteration in patient's mouth and some foreign body in patient's mouth, they got overactivated and produce excessive saliva in patient's mouth. तो उसके लिए परेशान नहीं होना, पेशेंट को शुरू में बताना है आपने, क्योंकि इनिशियल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाद में अगर पेशेंट आएगा डेंचर लगाने के बाद तो फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन आप देंगे, that would not be a pre-information, that is an explanation, and your patient might consider it as an explanation to your problem. वो उसको प्रॉब्लम समझेगा. एक्सेसिव लूजनेस हो सकती है पेशेंट को इनिशियली, बिकॉज व्हाई, your tissues are not adapted to your prosthesis there. Initially अगर आपको डेंचर लूज महसूस हो रहा है तो do not bother for that, because it needs some time to get retentive. कोहेजन, एडेजन, ये सारी चीजें डेवलप होने में थोड़ा सा वक्त लगता है. सलाइवा प्रोड्यूस होने में, वहां जो एप्रोप्रिएट सलाइवा है वो प्रोड्यूस होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा. पेशेंट should concentrate on a general appearance rather to कि ये एक दांत आगे है, एक दांत कम है, एक दांत ज्यादा है. उसको कहें कि आप 25 सेंटीमीटर अवे खड़े हो जाएं, शीशे से बिल्कुल क्लोज ना जाने दें, उसके हाथ में शीशा मत दें ताकि वो एक एक दांत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे. उसको कहें आप जनरल अपीयरेंस देखें ऑफ योर डेंचर, या दांतों की पोजीशन ठीक है, लिप्स ठीक बंद हो रहे हैं, बात करने में ठीक महसूस, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो देखा जा सकता है कंफर्मेशन के लिए कि एफ वी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एस साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ये सारे साउंड्स प्रोड्यूस करवा के आप देख सकते हैं कि पेशेंट की पोजीशनिंग ऑफ योर टीथ इज गुड. फिर उसमें कलर जो है वो पेशेंट आपको कंफर्म करेगा, पहले तो आप देखेंगे लेकिन बट that would be finalized by your patients. Then patient comments and suggestions must be realistic. जो मैंने अभी आपको बात बताई कि you are the one who will decide that whether this thing was okay or not, but this has to be very honest. Sometimes patient is demanding a very real thing there and you are just trying to camouflage your mistakes there. Do not try to camouflage your mistakes. Try to improve the things. Then if your patient is coming with some observer, might be friend, might be husband or wife, or some some relation, a person who is in some relation with your patient may come along with your patient. You can ask your patient to bring to come with some some close friend or your wife, so that we show your prosthesis, final prosthesis appearance to your observer as well, and he or she might give some positive feedback. So you, prior to that, you have to educate your observer. Ask your observer that stand passively. Do not share anything in front of patient's face.
whatever you see in, when we show you the prosthesis in patient's mouth, just keep those points in your mind, and later on we will sit together and you share with me. Do not show any expression in front of your patients, and when you show the patient to your observer, your patient should be performing certain function, like counting, smiling. Do not show your patient while your patient is seated relaxed. Always try to observe your patient while your patient is doing certain functions like counting, smiling, or you are talking with your patient in the areas of their interest, like तो अभी सियासत पे बात कर लें, या कितने बच्चे हैं घर में, या क्या करते हैं, कहाँ से आए. While your patient is under the conversation with you, then you allow your observer to see the appearance of your patient. So that is going to be more helpful. हमने ऑब्जर्वर को बुलाया है कि वो हमारी हेल्प करे, ना कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे हमारे लिए. So how will you verify the different things? Static को बाद में देखते हैं, पहले posterior से शुरू करते हैं. First you verify the vertical dimension. वो interior में भी vertical dimension आपकी verify हो सकती है. Phonetics से कर सकते हैं हम, या फिर आप पेशेंट को कहते हैं, जिस तरीके से हमने वर्टिकल डायमेंशन को डिस्कस किया, तो हमने कहा रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन क्या होती है. व्हेन योर पेशेंट इज सीटेड इन अ रिलैक्स स्टेट, योर बैक रेस्ट मस्ट बी वर्टिकली प्लेस, 90 डिग्री पे होना चाहिए विद द फ्लोर देयर, और पेशेंट रिलैक्स बैठा हो, कीपिंग इन कंसीडरेशन. उसको कहें एम साउंड बोले, और एम साउंड पर लिप्स को मिला के रखे लास्ट एम के ऊपर, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली रिट्रैक्ट द लिप्स विद योर फिंगर्स. डू नॉट allow your patient to move the jaw. उसको कहें कि अपने जबड़े को नहीं लाएं, हल्के से लिप्स खोल के देखें. अगर उसमें इस तरीके का गैप जैसे ये पिक्चर में नजर आ रहा है, if you find some gap between your upper and lower teeth and that is ranging from 2 to 4 millimeter, that means your vertical dimension is okay. This is the best way. This is the best way to verify your vertical dimension when you have teeth in your mouth. You always focus on your free waste space. This is your free waste space. So by that way you can verify your vertical dimension. मैं आपको सिंपल रखूंगा जो चीजें हम करते हैं नॉर्मली प्रैक्टिस में. फिर दूसरी चीज आप क्या देख सकते हैं, यू कैन सी द पोजीशन ऑफ योर टीथ. लाइक योर अपर टीथ शुड नॉट बी 2 millimeter, मैक्सिमम 2 millimeter शो ऑफ योर अपर टीथ, नॉट बियॉन्ड दैट. अगर ऊपर के दांत 2 millimeter रेस्ट स्टेट में 2 millimeter से ज्यादा नजर आ रहे हैं तो समझें वर्टिकल ठीक नहीं है. और जब रेस्ट स्टेट में बैठा हो पेशेंट और आप लोअर लिप को देखें, तो ये जो लोअर लिप का ये जो एरिया है जहां आपका केनाइन आता है या प्रीमोलर आता है, इस लेवल से, लिप के लेवल से दांत ऊपर नहीं होने चाहिए. 1 मिलीमीटर तक तो चलेगा, 1 मिलीमीटर से ज्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए. अगर इस लोअर लिप से नीचे वाले दांत ज्यादा ऊपर हैं तो समझ जाएं कि यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर वर्टिकल डायमेंशन. यानी अगर आपके इन सिंपल वर्ड्स, इफ योर लोअर टीथ विजिबिलिटी और योर अपर टीथ visibility through the upper or lower lip is greater, that is alarming for you. That is alarming for you that you have some problem in your vertical dimension. Then you verify the centric relationship. इसमें आप क्या करेंगे, दोनों डेंचर्स पेशेंट के मुंह में लगाएं, and you ask your patient to close the jaw slowly and gradually until you got the first contact of your teeth. First contact of your, this you should convey to your patient. If your patient is very intelligent, he or she might cooperate with you by 100%. Slowly and gradually close the jaw and stop the movement when you got the first contact of your upper and lower teeth. And then after that you ask your patient to close completely. पहले आपने उसको एक फर्स्ट स्टेप में बोला कि आपने जब तक मूव करना है जहां आपका पहला, आपको महसूस हो कि ऊपर और नीचे दांतों में पहला दांत मिल गया है, और उसके बाद आपने फिर कंप्लीट बंद करना है जब मैं कहूंगा. When I will ask you, then you can completely close your jaw. और आपने क्या करना है, you will make the observation, जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, you will make the observation that your mandibular prosthesis, focus on my words, your mandibular prosthesis is moving forward or backward.
उसकी मूवमेंट देखनी है कि ड्रैग कर रहा है या नहीं कर रहा, आगे या पीछे की तरफ आपका डेंचर मूव करता है रिज के ऊपर या नहीं मूव करता। अगर वो मूव कर रहा है दैट मीन्स कि आपकी सेंट्रिक रिलेशनशिप स्पॉट ऑन नहीं है, योर कस्प टू फोसा रिलेशनशिप स्पॉट ऑन नहीं है। फर्स्ट जब उसने बंद किया स्लोली और जब उसका फर्स्ट कांटेक्ट आया वो रिज के ऊपर आ गया, फोसा में नहीं आया। जब रिज के ऊपर आ गया, जब आपने उसको कहा क्लोज बंद करो, तो जब क्लोज बंद किया तो वो उसका जो टॉप रिज का पार्ट था उससे जब उस फोसा में गया तो उसने डेंचर को पूरे के पूरे ड्रैग कर दिया। तो दैट मीन्स योर सेंट्रिक रिलेशनशिप इज नॉट स्पॉट ऑन विद द सेंट्रिक ओक्लूजन व्हाट वी डिमांड्स बेसिकली। अगर आपको बहुत अच्छा फंक्शनल प्रोस्थेसिस चाहिए तो योर सेंट्रिक रिलेशनशिप एंड योर सेंट्रिक ओक्लूजन मस्ट कोइंसाइड विद ईच अदर, जो हम उस वक्त भी बताया था जब हम कर रहे थे। अब इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि वट एवर यू हैव इन पेशेंट्स माउथ, आप दोनों डेंचर्स के बीच में बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट लगाएं। नॉर्मली आजकल हमारे पास बाइट रजिस्ट्रेशन इलास्टोमर्स आते हैं जो कि गन में होते हैं, उनके आगे मिक्सिंग नोजल लगा हुआ होता है। आप नीचे वाले डेंचर के दांतों के ऊपर थोड़ा सा डालें और उसको बंद करें सेंट्रिक रिलेशनशिप के अंदर पीछे ले जाकर, लेकिन डेंचर्स आपके स्टेबल होने चाहिए पेशेंट्स के मुंह में। वो जो सी मेथड आपको बताया था वही सी मेथड से आप उसको सेंट्रिक रिलेशनशिप को पीछे क्लोज करें, उसको निकालें और आर्टिकुलेटर के ऊपर देखें, जो पुराना आपका आर्टिकुलेटर है जिससे आप जिस पे अरेंजमेंट कर रहे हैं वैक्स के दांतों के अंदर, उस पर देखेंगे वही सेम क्लोज होता है या नहीं होता। अगर नहीं हो रहा, आगे पीछे डेंचर हो गए थोड़े से, तो वो क्लोज नहीं होगा। सेंट्रिक रिलेशन अगर चेंज हो गई है तो वो क्लोज नहीं होगा। तो फिर आप सेंट्रिक रिलेशनशिप को चेंज करेंगे, उसमें आप आर्टिकुलेटर का जो आपका कास्ट बना हुआ है या जो आपने माउंटिंग की हुई है जिसको आप कहते हैं, जो कि सॉफ्ट प्लास्टर से हुई हुई है, उसको एक को तोड़ दें, नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि उस पर आपने फेस वो रिकॉर्ड किया हुआ। नीचे वाले को तोड़ें और दोबारा से प्लास्टर डाल के नई पोजीशन पे आर्टिकुलेट करें इसको। सो नॉर्मली एक इंट्राओरल मेथड है और एक एक्स्ट्राओरल मेथड है। इंट्राओरल मेथड में आप ऑब्जर्वेशन इंट्राओरली करते हैं, एक्स्ट्राओरल में आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते, यू जस्ट मेक द रिकॉर्ड इन पेशेंट्स माउथ एंड ब्रिंग इट टू योर आर्टिकुलेटर, और वहां देखते हैं कि वहां कोई गलती है या नहीं है। देन यू वेरीफाई द डेंचर बेस कि वो ज्यादा थिक तो नहीं है, ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है, अंडर एक्सटेंडेड तो नहीं है। जैसा अभी हमने बताया पोस्टीरियर सील एरिया में भी अंडर एक्सटेंडेड हो सकती है। तो अगर वो ओवर एक्सटेंडेड है लाइक इन योर लेबल फ्रेनम एरिया, यहाँ अक्सर आप उसको रिलीव नहीं करते, तो पेशेंट जैसे स्माइल करता है डेंचर्स ड्रॉप्स डाउन। तो हमेशा जब भी एंटीरियर टीथ की पोजीशन को आप वेरीफाई कर रहे हैं, यू ऑलवेज वेरीफाई दैट कि आपका लेबल फ्रेनम रिलीव हुआ या नहीं। अगर वो ऊपर फंसा हुआ इस तरीके से इन योर डेंचर बेस and you are verifying the position, your lip position is not okay, and you are correlating your teeth position with your upper lip, जो कि सारा का सारा गलत हो रहा है। Why? Because your base is not correct. Your base is के your lip must not be caught underneath your denture base. It has the freedom to move up and down, left, right, your lip, upper lip, and upper lip is basically attached with your labial frenum. तो अगर आपका डेंचर बेस लेबल फ्रेनम के अंदर स्लॉट बनी हुई होगी, उसकी रिलीविंग एरिया बना हुआ होगा, तो आप आसानी के साथ वेरीफाई कर सकते हैं पोजीशन ऑफ योर एंटीरियर टीथ। लेकिन अगर आपका ये रिलीव नहीं होगा, जब आप पेशेंट को डेंचर दे देंगे, वो कंप्लेन करेगा कि मैं जब भी स्माइल करता हूँ डेंचर गिर जाता है। या if you have a very good retention, if you have a poor retention already, तो वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। और बहुत नाइस रिटेंशन होगी तो that would traumatize your tissues. You may find some hyperplastic tissues development in that particular area, label frenum के एरिया में। So denture based contour में रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी को कैसे वेरीफाई करते हैं? बहुत सिंपल है। आप रिटेंशन को किस तरीके से करेंगे? सेंट्रल इंसिजर पे your finger would go on a palatal, this little finger, सॉरी दिस इंडेक्स फिंगर, और आपका थंब जो होगा वो आपका लेबल साइड पर रहेगा दांत सेंट्रल इंसिजर के, एंड यू ट्राई टू मेक अ वर्टिकल पुल डाउनवर्ड। सेंट्रल इंसिजर को होल्ड करें दो फिंगर्स के दरमियान और वर्टिकल पुल दें। इफ योर डेंचर इज रेजिस्टिंग दैट वर्टिकल पुल, दैट मींस योर रिटेंशन इन योर बक्कल फ्रेनम टू बक्कल फ्रेनम इज ओके, यानी इंटीरियर सेगमेंट में आपकी रिटेंशन परफेक्ट है। सिमिलरली होल्ड द डेंचर and try to make a C like this. It pull it upward. ठीक है, उसी पोजीशन पे फिंगर्स को रख के उसको अपवर्ड की तरफ आप फिंगर्स को मूव करें, सी बनाने की कोशिश करें अपवर्ड डायरेक्शन में। इफ
that movement is resisted by your denture, that means your retention is okay in your posterior palatal seal area. Means hamelar notch to hamelar notch, आपकी retention okay है. अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो वहां आपकी सील गुड नहीं होगी. विद द लिटिल रेजिस्टेंस यू वुड बी एबल टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर सील देयर. वहां साउंड जरूर, सक्शन साउंड जरूर आना चाहिए. अगर सक्शन साउंड नहीं है, विदाउट सक्शन साउंड आप ट्राई टू डिसलॉज द डेंचर एंड इट इज गोइंग डिसलॉयड, तो आप समझ जाएं कि आपका पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया में कंप्रेशन ठीक नहीं है, या आप शॉर्ट हैं या आप ओवर एक्सटेंडेड हैं. देन यू वुड डायग्नोज, आप वाइब्रेटिंग लाइन लगाएं दोबारा से, उसको रिकन्फर्म करें. अगर आप शॉर्ट हैं तो इसको इंप्रूव करें, ओवर एक्सटेंडेड है तो उसको शॉर्ट करें. और अगर आपकी कंप्रेशन ठीक नहीं है तो ऐड ऑन द ग्रीन स्टिक एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड मेक द फाइनल इंप्रेशन अगेन, और ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके इन फाइनल प्रोस्थेसिस. तो इस पॉइंट पे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज. और स्टेबिलिटी को किस तरीके से चेक करें? कीप योर फिंगर ओवर योर प्रीमोलर एरिया वर्टिकली. एंगल नहीं होना चाहिए. अगर आपने एंगुलर फोर्स लगाया तो यू आर नॉट बी एबल टू जज द स्टेबिलिटी. एक प्रीमोलर पे रखें, फर्स्ट या सेकंड प्रीमोलर में से, या दोनों के बीच में रख लें, और वर्टिकल फोर्स दें ऊपर की तरफ. इट शुड नॉट, द डेंचर शुड नॉट रेज फ्रॉम द अपोजिट साइड. अगर वो दूसरी साइड से गिर जाता है, इफ इट इज ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम द अपोजिट साइड, योर सपोर्ट एंड योर स्टेबिलिटी इज नॉट ओके. बेसिकली योर सपोर्ट, I would say, but that is the part of your stability. Retention भी और stability, ये दोनों part हैं आपकी. Support and retention is the part of your stability. तो अगर वो दूसरी तरफ से रेज हो रहा है, समझ जाएं कि टिश्यू के ऊपर कांटेक्ट ठीक नहीं है, या आपकी डेंचर बेस ओवर एक्सटेंडेड है. दोनों बातों में से एक है. तो उसको इंप्रूव करें. फिर पेशेंट को आप इन्वॉल्व करें इन कन्वर्सेशन और देखें डेंचर ड्रॉप तो नहीं हो रहा. अगर आपका डेंचर ड्रॉप हो रहा है ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन, जब वो बात करता है, मुंह खोलता है, बंद करता है, फिर आप उसको चेक करें कि कौन से डेंचर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. फिर फर्स्ट यू इंसर्ट द मैक्सिलरी डेंचर, डू नॉट इंसर्ट द मैंडिबुलर डेंचर. इंसर्ट किया मैक्सिलरी डेंचर और उसको कहा मुंह खोलो, बंद करो, लेफ्ट करो, राइट करो, स्माइल करो. इफ योर डेंचर इज नॉट ड्रॉपिंग डाउन, दैट मींस योर मैक्सिलरी डेंचर इज ओके. देन इंसर्ट द मैंडिबुलर डेंचर टुगेदर विद योर मैक्सिलरी डेंचर. अगर फिर गिर जाता है, दैट मींस योर मैंडिबुलर डेंचर इज नॉट स्टेबल. दैट्स व्हाई इट इज ड्रॉपिंग डाउन द मैक्सिलरी डेंचर एज वेल. अगर एक भी डेंचर आपका स्टेबल नहीं हुआ दोनों में से, तो दोनों डेंचर्स आपके फंक्शनल नहीं रहते. तो बाय दैट वे यू ट्राई टू इंप्रूव दी प्रोस्थेसिस. अब उसमें सेंट्रिक रिलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही, या आपने दांत मैंडिबुलर बहुत बाहर या बहुत अंदर लगा दिए, या बहुत हाई लगा दिए, या आपकी डेंचर बेस के अंदर इशू है, वो ओवर एक्सटेंडेड है. इन केस वेयर योर पेशेंट इज हैविंग हाई लिप लाइन, वेरी अग्रेसिव, यानी वो जब स्माइल करता है उसके गम्स नजर आते हैं, जिसको आप हाई लिप लाइन कहते हैं या गमी स्माइल कहते हैं. इन केस ऑफ योर गमी स्माइल, आपका डेंचर बेस का शेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको मैच करेंगे विद द गम्स कलर. और अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो यू विल यूज द ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक. आजकल ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक भी आता है, सी थ्रू एक्रेलिक जिसको कहते हैं. सी थ्रू एक्रेलिक आप यूज कर लें, दैट वुड रिफ्लेक्ट द सेम शेड ऑफ योर गम्स. But try to keep one more thing, that you will do the festooning and stippling. Festooning क्या है और stippling क्या है? Festooning is the shape of your roots. यानी आपने gums के ऊपर जिस तरह से depression and depressions बनाने होते हैं, जैसे कि root के लिए होते हैं, या root का shape जो होता है वो बनाया जाता है. और stippling किसे कहते हैं? जैसे ऑरेंज का पील ऊपर जो उसका छिलका होता है ना, उसमें बारीक बारीक सुराख से होते हैं, उसको स्टिपलिंग कहते हैं. वो कैसे करेंगे? आप मलमल का कपड़ा ले लें, यू टेक दिस क्लोथ और टूथब्रश भी ले लें, और जब आपने फाइनल फिनिशिंग कर दी है तो ओवर द वैक्स एरिया यू जस्ट ट्राई टू मेक सर्टन this stippling appearance there. Stippling appearance can be made with the help of your toothbrush or with the help of some cloth there. ये तो फाइनल जब आप फिनिशिंग स्टेप पे आ जाएंगे फिर उस वक्त करेंगे, लेकिन ट्रायल से पहले करना है आपने. सो दिस इज अबाउट योर वेरिफिकेशन ऑफ योर डेंचर बेस. प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? एस्थेटिक कंसीडरेशन. अभी तक तो हमने सिर्फ बात की जी एस्थेटिक कंसीडरेशन. फंक्शनल कंसीडरेशन को अभी हम डिस्कस करके आए कि सेंट्रिक रिलेशन या वर्टिकल डायमेंशन को कैसे इंप्रूव करें. लेकिन आपकी स्टैटिक्स में कब प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी और किस वजह से वो प्रॉब्लम होंगी. पहले हम देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है. यहाँ ये प्रॉब्लम लिस्ट है आपकी.
फेशियल स्ट्रेन जब आपके जो फेस जब जब वो क्लोज कर रहा है जॉस को, बोथ द जॉस, you would find some, you know, some strainy appearance there, that he is forcing his lips to close down. जब आप forcefully किसी जॉ को क्लोज करते हैं, that appearance is called strainy appearance of your patient's mouth. So then you would see the lip fullness, उसमें aggressive lip fullness आ रही है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि फेस फुल पफी फेस महसूस हो रहा है आपको, या आपको लिप सपोर्ट प्रॉपर नहीं है, यानी एक जगह नीचे से तो दांत ज्यादा आगे की तरफ है, ऊपर से जो है दांत बहुत अंदर लगे हुए हैं, तो लिप सपोर्ट ही प्रॉपर नहीं है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि यू विल सी दैट by seeing by observing the different, you know, facial expressions there and the facial expression muscles appearance there. जैसे कि आपका नेजोलेबल ग्रूव है, आपका फिल्ट्रम एरिया है, या फिर आपका ये मेंटल लेबियो मेंटल फोसा जो होती है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो बाय ऑब्जर्विंग दीज फीचर्स यू कैन सी दी लिप सपोर्ट देयर। देन कॉटन रोल अंडर द अपर लिप, जब अगर आपका ऊपर से अपर वाला डेंचर उसका बेस बहुत थिक है, तो यू विल सी दैट के ऊपर थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई है लिप के एरिया में, जहां नोज और लिप का जंक्शन है, जिसको आप एला ऑफ द नोज एरिया कहते हैं, यहां पर आपको थिकनेस ज्यादा महसूस होगी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवर थिकनेस ऑफ योर डेंचर बेस। एंगल ऑफ द माउथ टर्न डाउन, अगर आपका ऊपर वाला लिप नीचे वाले लिप को ओवरलैप कर रहा है एट योर कॉर्नर, तो ग्रुपिंग फेस अपीयरेंस होगी वहां पर। देन ऑब्लिटरेशन ऑफ योर फिल्ट्रम, अभी मैंने आपको बताया, इंडिकेट विजिबिलिटी ऑफ योर वर्मिलियन बॉर्डर। लिप के ऊपर आपका म्यूकोजा और स्किन का जो कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड वर्मिलियन बॉर्डर। अगर आपकी इनएडिकेट अपीयरेंस है, दैट मींस योर पोजीशन ऑफ योर टीथ इज नॉट ओके, वो बहुत अंदर करके लगे हुए हैं दांत, सपोर्ट प्रॉपर नहीं है। नोज चिन अप्रॉक्सीमेशन, वर्टिकल डायमेंशन ठीक नहीं है। डीपनिंग ऑफ योर नेजोलेबल ग्रूव, आपको पता है सपोर्ट ठीक नहीं है, इस वजह से नेजोलेबल ग्रूव आपका सही अपीयरेंस नहीं होगा। स्माइल लाइन, स्माइल लाइन की हमने पीछे बात की थी कि आपके अपर के टीथ फॉलो द कर्वेचर ऑफ योर लोअर लिप, वो नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो आपकी स्माइल लाइन ठीक नहीं होगी। डेंटल मिड लाइन कोइंसाइड विद द फेशियल मिड लाइन, अगर आपकी फेशियल मिड लाइन के साथ डेंटल मिड लाइन अगर नहीं कर रही, so if the dental midline coinciding with the facial midline, you can observe that thing by keeping one thread over your, जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट में लोग करते हैं नॉर्मली। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं है तो आप धागा लें, take the thread and try to fix it over the midline of your face, and then ask your patient slightly open the jaw and try to observe whether both of your central incisor they are at that particular line or not, they are meeting at that particular line or not, means the midline of your teeth is coinciding with the facial midline or not. If no, you have to improve it. अगर आपने improve नहीं किया, सारा का सारा shift हो जाएगा on one side of your canine। इसका सबसे बड़ा जो important sign है वो ये है कि एक side का canine, you will see one side of your canine, the other side of your canine will not be apparent there। अगर आपको एक canine नजर आए और दूसरा canine नजर ना आए तो समझ जाएं कि आपकी midline ठीक नहीं है। रीजंस क्या है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, साथ साथ कुछ मैंने बताए भी हैं कि अगर आपका डेंचर बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसमें अंडर एक्सटेंशन हो सकती है, ओवर एक्सटेंशन हो सकती है, या बहुत थिक हो सकते हैं फ्लैंजेस आपके, या कलर आपका ठीक नहीं हो सकता डेंचर बेस्ड का। एक बात याद रखें, ये जो पिंक एक्रेलिक है, इसके डिफरेंट शेड्स आते हैं। ऐसा नहीं हमारे पास तो ओपीडी में कोई भी शेड आ जाता है, वो नॉर्मली यूज करना शुरू कर देते हैं। और इसके अंदर जो वेन्स होती हैं, जो आपने देखे होंगे थ्रेड से रेड रेड थ्रेड डले हुए होते हैं, वो वेन्स कहते हैं उनको, उसकी परसेंटेज भी वेरी करती होती है डिफरेंट एक्रेलिक्स के अंदर। अगर यंग पेशेंट होता है तो नंबर ऑफ वेन्स जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज ग्रुप, ज्यादा ब्लड शो ऑफ करता है वो। देन यू हैव टीथ सिलेक्शन प्रॉब्लम, टू स्मॉल टू लार्ज टीथ, आप ये गलती कर सकते हैं, अनसूटेबल कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसूटेबल शेप हो सकती है दांतों की, जो कि हमने लियोन विलियम थ्योरी पे बात की थी। इनसफिशिएंट टूथ हाइट हो सकती है, यानी आपका ज्यादा दांत नजर आ रहे हो या कम दांत नजर आ रहे हो,
दोनों बातें हो सकती हैं। टीथ में पोजीशनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपने बहुत ऊपर करके दांत लगा दिए, वर्टिकल डायमेंशन को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, रिड्यूस, या बहुत नीचे करके दांत लगा दिए हैं, या बहुत आगे करके दांत लगा दिए हैं, टू फॉरवर्ड एंड टू फॉर बैकवर्ड, या बहुत पीछे दांत लगा दिए हैं, या एक्सेसिव विजिबिलिटी ऑफ इंसिजन, बहुत नीचे दांत लगे हुए हैं, इनसफिशिएंट विजिबिलिटी ऑफ इंसिजर्स, बहुत ऊपर दांत लगे हुए हैं। बक्कल कॉरिडोर मींस आपने पीछे से दांतों को ज्यादा बाहर की तरफ फैला दिया है, तो बक्कल कॉरिडोर आपका जो ब्लैक अपीयरेंस होती है वो नहीं आएगी, या बहुत अंदर करके लगा दिए तो ज्यादा नजर आएगी। स्लांटिंग स्माइल लाइन, यानी आपने एक तरफ का केनाइन नजर आ रहा है, दूसरी तरफ का नहीं नजर आ रहा, आपने एक का ऊपर लगा दिया है, एक का बहुत नीचे लगा दिया है। रिवर्स स्माइल लाइन हो सकती है, केनाइन दोनों के दोनों आपने बहुत नीचे करके लगा दिए हैं, तो इस वजह से रिवर्स स्माइल लाइन हो जाती है। टीथ अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स में और क्या हो सकता है, डिसहार्मनी इन योर लॉन्ग एक्सिस, मींस अगर एक सेंट्रल इंसिजर 30 डिग्री पर इस तरीके से लगा हुआ है, मीजियली इंक्लाइन, या ऊपर से अगर सर्वाइकली देखें तो डिस्टली इंक्लाइन, तो दूसरा भी 30 डिग्री पे ही अपोजिट एंगल में लगा हुआ होना चाहिए। अगर इसका एंगल चेंज, एक सेंट्रल इंसिजर सीधा लगा हुआ है, दूसरा आपने एंगल ऐसे करके लगा दिया, तो आपकी हार्मनी नहीं होगी। मींस द एंगल्स ऑफ लॉन्ग एक्सिस एंगल जो है आपके ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर टीथ मस्ट बी इक्विवेलेंट, मस्ट बी सेम। अगर आपका ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री पे से, तो आपकी हार्मनी बनेगी। अगर एक दोनों के एंगल्स में डिफरेंस होगा तो हार्मनी नहीं होगी। Then your facial midline is not coincidental with your dental midline, तो तब भी प्रॉब्लम होगी। मे भी मैंने आपको बताया था सिर्फ एक केनाइन नजर आएगा, एक केनाइन नजर नहीं आएगा। डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें 3 फैक्टर्स को डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट में एड्रेस किया जाता है, एज ऑफ योर पेशेंट, जेंडर ऑफ योर पेशेंट एंड द पर्सनैलिटी ऑफ योर पेशेंट। ये थोड़ा सा सुन लें इसको। एज से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेशेंट 60 प्लस है तो एजेड पेशेंट है, उसमें क्या होता है, एट्रिशन इज वेरी वेरी कॉमन। तो आपका सेंट्रल, लेटरल एंड केनाइन, केनाइन की टिप नहीं होती, केनाइन की टिप को ग्राइंड करके फ्लैट, जैसे सेंट्रल इंसिजर की टिप होती है बिल्कुल ऐसे हो जाती है, फ्लैट दांत लगे हुए होते हैं 60 प्लस पेशेंट के अंदर। तो दिस इज फॉर योर ओल्ड एज। और यंग एज के अंदर आप ट्राई टू bring all of your consideration, static consideration जो normal किसी patient में। दूसरी बात, old age patient के अंदर you might have some elongated teeth appearance there, क्योंकि आपको पता है कि उन patients में gum recession is very very common। elongated tooth appearance भी आप रख सकते हैं, canine के एरिया में, central incisor के एरिया, ज्यादा दांत की visibility रख सकते हैं इन patients में। Second thing is the जेंडर ऑफ योर पेशेंट, यानी मेल है या पेशेंट या फीमेल पेशेंट है। नॉर्मली फीमेल पेशेंट्स आर मोर हैव मोर फेमिनिन अपीयरेंस देयर। फेमिनिन अपीयरेंस में क्या होता है कि जो लेटरल इंसाइजर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू कीप फेशियल फॉर्म ऑफ योर टीथ मोर राउंडिश इन फीमेल पेशेंट्स, जबकि मेल पेशेंट्स के अंदर स्क्वायरिश यानी चकोर फॉर्म दांतों की होगी। फीमेल पेशेंट्स में मोर राउंडिश फॉर्म आप कोशिश करेंगे वो लेंगे डेलिकेट अपीयरेंस के लिए। लेटरल इंसीजर फीमेल पेशेंट में always be shorter than your occlusal plane, always be shorter than your occlusal plane, more mesially inclined, तो आप more feminine appearance produce कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने दांत सीधा लगाया lateral incisor और level of occlusal plane पे लगाया तो आप समझें आप मेल पेशेंट के लिए दांत लगा रहे हैं। Then the personality of your patient, अब मेल में अगर एक मेल ऐसा है जो कि बिल्कुल विगरस अपीयरेंस वाला नहीं है, डेलिकेट अपीयरेंस वाला है, तो उसके अंदर भी आप ऑलमोस्ट समवेयर इंटरमीडिएटली ट्राई टू मैच अप विद द फीमेल फीचर्स जो होते हैं। यानी आप कोशिश करके लेटरल इंसिजर को थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ ओक्लूजल प्लेन रखें। दूसरी बात यह है कि उसमें बहुत ज्यादा स्क्वायरिश फीचर्स देने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट फीचर्स को रखें वहां पर। तो ऐसे पेशेंट में, और साइज ऑफ द टीथ जो होगा वो इतना ज्यादा बड़ा यूज नहीं होगा, इंटरमीडिएट साइजेस यूज होंगे। फीमेल्स में कोशिश करें छोटे दांत लगाएं, ज्यादा आपको डेलिकेट अपीयरेंस देते हैं। तो बाय दैट वे यू ट्राई टू मर्ज 3 डिफरेंट एरियाज टू हैव अ ऑप्टिमम अपीयरेंस फॉर योर पेशेंट। कौन से 3 फैक्टर्स? एज ऑफ योर पेशेंट, जेंडर ऑफ योर पेशेंट एंड द पर्सनैलिटी ऑफ योर पेशेंट। अगर विगरस पर्सनैलिटी है तो आपने स्क्वायरिश फॉर्म्स लेनी है, सारे दांतों को सेम लेवल पे लगाना है, लेटरल को शॉर्ट नहीं करना, ज्यादा प्रोक्लेनेशन ऑफ टीथ नहीं रखनी है, कोशिश करके सीधे दांत लगाने हैं, मीजियली इंक्लिनेशंस भी ज्यादा नहीं रखनी है, सीधे करके दांत लगाने, तो दैट वुड गिव मोर
vigorous apparel for your patients there. So ये इस concept को कहते हैं dentogenic concept of your tooth arrangement या aesthetic consideration, जो भी आप कहना चाहें. Then you have occlusal plane consideration, bilateral symmetry of your occlusal plane. ये तो हर patient में demand है. जैसे मैंने आपको कैम्फर्स प्लेन बताया था जब हम जॉ रिलेशन कर रहे थे, कैम्फर्स प्लेन लगा के दोनों साइड की रीडिंग लेते हैं आपकी एला ट्रेगस लाइन के साथ, ताकि दोनों साइड पर आपका क्लूजल प्लेन बैलेंस्ड हो जाए. अगर ये बैलेंस नहीं है, स्लांट कर रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो आपकी स्टैटिक कंसीडरेशन फुलफिल नहीं होंगी ऐसे पेशेंट्स में. थैंक यू. एनी क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर? वो जो आप कोई लेक्चर्स की डिमांड है वो इंशाल्लाह मैं आज से अपलोड करना शुरू कर दूंगा. आई हैव मेड दिस यूट्यूब चैनल, उस पर 1-2 लेक्चर मैंने अभी कर दिए हैं. आपको मैं लिंक इंशाल्लाह सेंड कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर, तो आपको लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्लीट डेंचर पेशेंट. जब डिलीवरी करते हैं आप कंप्लीट डेंचर की, तो पेशेंट को आपने क्या क्या बातें सिखानी होती हैं उसके लिए. So inshallah we will meet next time. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir.